So this is the 12th question. We had done up to question number 11. Please note it down with me, okay? You can all see my screen clearly, right? Yes, sir. Great. A hemispherical bowl of internal diameter 36 centimeter contains a liquid. This liquid is filled in 72 cylindrical bottles of diameter 6 centimeter. Find the height of each bottle if 10% of liquid is wasted in this transfer. This liquid is filled in 72 cylindrical bottles of diameter 6 centimeter. So all the liquid is utilized. 72 cylinders are filled and 10% of liquid is wasted also. So 10% of the total amount of liquid present in the hemispherical bowl is wasted. Okay, so I'll write hemispherical bowl over here, and its internal diameter is 36 centimeter. So the internal radius will be 18 centimeter, and its volume or its capacity will be 2 by 3 pi r cube. Is this formula correct for volume of hemisphere? Is it correct? Two by 3 pi r cube, that's the volume, right? Okay, I'm getting no replies. So that means I think I should go with my instinct. Okay, so r cube is 18 cube because radius is 18. So 3 6 are 18. There is nowhere mentioned what value of pi we have to take. So I've taken 22 by 7. Okay, so here I'm getting 2 times 22, which is let's say 44 times 6 times 18 square, which is I think 324. Is it 324? Anyone? Are you able to hear me, guys? Because, okay. Okay, so this is the volume of hemispherical bowl. This what you see over here is the volume of hemispherical bowl. मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, बिकॉज आई एम दिस इज नॉट माई फाइनल आंसर. सो ये एक अच्छी टेक्निक है. इफ इट इज नॉट योर फाइनल आंसर, डोंट कैलकुलेट. Okay, so this is in centimeter cube, the volume of hemispherical bowl. Now 10% of the liquid stored in this hemispherical bowl is wasted. So volume of liquid filled in 72 cylindrical bottles is equal to volume of bowl minus 10% of the volume of bowl. Why? Because 10% of liquid is wasted. So we'll find that out. So what volume of liquid filled in 72 cylindrical bottles will be volume of bowl, that is 44 times 6 times 324 divided by 7 minus 10% of 44 times 6 times 324 divided by 7. Okay, so you have to find this percentage and then subtract. So this will be 44 times 6 times 324
by 7 minus 10% off, that is 10 by 100 into 44 times 6 times 324 divide by 7. So you can cut this 0, 2 22s are 2 5s are, this 5 is also not going to cut. So our denominator will have 35 here and here it is 7. So we'll take an LCM because there is a subtraction sign, so we have to subtract. So there is a calculation coming up. See, what we have to find is we have to find the height of each model. Okay, so that's, I'm going to help you with that, but for that first you need to subtract this. For subtraction we need to take LCM. So here there is 7 5s are 35 and here it's just 7, so you have to multiply here with 5 and here by 1. So you get 44 times 6 times 324 times 5 minus 22 times 6 times 324. I'm very lazy with calculations. If somebody is good, you can go ahead, but I'll try not to multiply anything and still find the answer. So I'll take out 22 times 6 times 324 common. 22 times 6 times 324. If I take this out common, what I'll be left with over here? I'll be left with 2. Uh, yeah, because 44, one of the factor is 22, which is out, so 2 will remain. 6 is out, 324 is out, 5 will remain, minus 1 by 35. Okay, so this will be 22 times 6 times 324 times 2 5s are 10. 10 minus 1 is 9, right, by 35. Okay, so this you have to finally multiply and simplify. I think don't multiply. This is the remaining amount of liquid which is transferred into 72 cylindrical bottles after 10% of the liquid stored in hemispherical bowl is wasted. ठीक है, तो ये बाकी का वॉल्यूम है मेरे पास यहाँ पे. अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है. मेरे साथ अगर नोट करोगे तो इजी रहेगा बिकॉज आई एम गोइंग टू जस्ट go ahead. So this is the amount of volume which I am transferring into 72 bottles. Okay, so total volume of liquid in 72 bottles is equal to, total volume of liquid in 72 bottles is equal to uh, 22 times 6 times 324 टाइम्स 9. किसी के माइंड में अगर ये क्वेश्चन है कि सर आपने ये जो फ्रैक्शन में लिखा है मुझे कैलकुलेट करके पूरा लिखना है एज इट इज़, जो भी है नंबर्स में डेसिमल्स में, या यू कैन डू दैट. You can even write it in fraction. There is no issue. Because I'm doing it, you have to do it. It's not mandatory. Okay, I'm comfortable in this method because I don't like to calculate in each step, because the final answer will be, required in the simplest form, not the intermediate steps. So I don't calculate, I don't do the final calculation uh, till the final answer is reached. So total volume of liquid in 72 bottles is this much. Therefore, volume of one bottle can be found. Wait. So volume of one bottle can be found easily now. Volume of one, see, I know the volume of 72 bottles. So volume of one bottle is equal to this whole thing, divided by 72. Okay, so I'm going to divide it by 72. 22 by 6 times 324 times 9 by 35 times 72. Okay, so this will become 9 8 is a 9 8 is 72. Then I have 2 3s are and 2 4s are, again 2 2s are and 2 162s are, and 2 here it'll cut and I'm going to get let's say over here 81s are.
करेक्ट. सो यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन हो गया. आई एम गेटिंग 22 times 3 times 81. So I'm going to write it as 66 times 81, right? 66 times 81 by 35. So this is the volume of one bottle in centimeter cube. Now, what do we have to find? Again, let me show you the question. In question, they have asked us to find the height of each bottle. और हमें पता है कि डायमीटर बॉटल का, सिलिंड्रिकल बॉटल का 6 सेंटीमीटर है. ठीक है. सो वॉल्यूम तो मिल गया है. ये सिलिंड्रिकल बॉटल है, सिलिंड्रिकल. ठीक है. सो वॉल्यूम को किससे इक्वेट करेंगे? पाई आर स्क्वायर एच से. एक्चुअली पाई को पाई छोड़ा होता तो भी चलता था. ये पाई की वैल्यू डाल के भी हमने थोड़ी गलती कर दी है. पाई को पाई छोड़ा होता तो चलता था. ठीक है. बट कोई बात नहीं, चलो 22/7. और हमें क्या दिया है? रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है. आई थिंक डायमीटर दिया है. डायमीटर ऑफ each bottle is 6 centimeter, so radius will become 3, right? So यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर कितना होता है? 9. और हमें ढूंढनी है हाइट. ठीक है. 66/81, 66 टाइम्स 81/35. चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो h इज इक्वल टू, उप्स, h is equal to 66 times 81/35 times 7/22 times 1/9. ठीक है. सबको मैंने वो साइड ले लिया. 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा. ठीक है. 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा यहाँ पे. और ये हो जाएगा 22 3 ज़ा. सो अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे? 27/5. 27/5 डेसिमल में कोई बता सकता है मेरे को? सेंटीमीटर्स में 27/5, एनीवन? 5 point something, 5.7, 5 point, no, I don't know, 5.4. अरे यार कोई आंसर नहीं कर रहा है, बहुत अजीब लग रहा है मेरे 5.4. को. थैंक यू सो मच. 5.4 सेंटीमीटर. अब हम चेक करते हैं ये आंसर सही है कि नहीं. 5.4 सेंटीमीटर. तुमने नोट किया यहाँ पे मैंने एक भी कैलकुलेशन नहीं किया. दिस इज नोन एज लेजी मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. एक भी कैलकुलेशन नहीं. बट यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है. एक तो मैंने तुम्हें टेक्निक बताई कि पाई को पाई छोड़ देते इस क्वेश्चन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. एंड में पाई की वैल्यू डाल देते. ठीक है. सो यू कैन डेफिनेटली लर्न टू सॉल्व दिस वे विदाउट डूइंग मेनी कैलकुलेशंस. क्योंकि हमारे माइंड में होता है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत कैलकुलेशंस होते हैं. ऐसा नहीं है. ये मैं प्रूव कर रहा हूँ. पहले तो आंसर चेक करते हैं, नहीं तो पता चला आंसर ही गलत है. 5.4 सेंटीमीटर फाइनली. वेरी नाइस. तो आई फील वेरी गुड बिकॉज लास्ट क्लास में बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हुई थी मेरे से. तो ये आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट आया, मतलब इट्स गुड. बट यार आई हैव अ प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ यू. बहुत कम लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं. प्रॉब्लम क्या है? चुप क्यों बैठे हो यार? व्हेन आई एम आस्किंग यू समथिंग प्लीज टेल मी. आई वांट यू टू कम्युनिकेट विद मी. ठीक है. अदरवाइज आई फील दैट मैं अकेला ही बड़बड़ कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ. दिस इज अ लाइव क्लास, राइट? मेक मी फील लाइक इट्स अ लाइव क्लास. टुमारो विल बी अ फिजिकल क्लास. ठीक है. कल क्लास में आना है तुम लोगों को, जो भी आ सकता है उनको. और बाकी लोग लाइव जाएंगे, तभी प्रॉब्लम नहीं होता है. बट घर पे बैठ के इट इज़ डिफरेंट. Actually, I had no plan to conduct a class today. I drove for around 10.5 hours. But मुझे लगा कि I think ये ख़त्म कर देते हैं हम लोग, because अभी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है. So it is no point of, you know, dragging the remaining couple of chapters which are there. इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ आज. So please respond to whatever I ask. Otherwise, I feel left out. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, these are very important type of question.
रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं इसको, रेट ऑफ फ्लो क्वेश्चंस, फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं यू नीड टू अप्लाई सम स्पेशल स्किल्स, जो मैं सिखाऊंगा तो मैं ये सब सॉल्व करेंगे जब भी हम लोग। काफ़ी क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो you will have a very good idea about how to solve problems involving rate of flow. Wait. Okay, let's begin. Question number 13. A cylindrical pipe has inner diameter of 7 centimeter and water flows through it at 192.5 liters per minute. Is anyone unmute? Keep yourself muted, please. ठीक है, एक सिलिंड्रिकल पाइप है जिसका इनर डायमीटर है 7 सेंटीमीटर एंड वाटर उसके थ्रू फ्लो कर रहा है एट 192.5 लीटर्स पर मिनट। दिस इज द रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब किस स्पीड से वाटर निकल रहा है। तो स्पीड का जो यूनिट है जो हमने पढ़ा है, यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे लीटर्स पर मिनट है, liters per minute. So that is amount of water flowing out through the pipe in a unit time. So इसको rate of flow बोलते हैं हम लोग। स्पीड ऑफ फ्लो और रेट ऑफ फ्लो में थोड़ा सा फर्क है। रेट ऑफ फ्लो में वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बट कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो भी हम देखेंगे। पहले तो हमारे पास एक सिलिंड्रिकल पाइप है, समझो इसको। वी हैव अ सिलिंड्रिकल पाइप। ये सिलिंड्रिकल पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है और रेट ऑफ फ्लो क्या है, 192.5 लीटर्स पर मिनट। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर्स पर आवर। हमें रेट ऑफ फ्लो को कन्वर्ट करना है लीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और हमें क्या पता है इसका इंटरनल डायमीटर डी 7 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब ये जो रेट ऑफ फ्लो दिया है इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में आता है कि 192.5 लीटर्स ऑफ वाटर फ्लोज आउट थ्रू द पाइप in 1 minute. 192.5 liters of water flows out through the pipe in 1 minute. ये हमें समझ में आता है इससे। 192.5 liters of water flows out through the pipe in 1 minute. Now what is this? Can anybody tell me what is this 192.5 liters? Come on, answer me. Volume, sir. Exactly. This is the volume of water which is flowing out through the pipe in 1 minute. So वॉल्यूम कितना है 192.5 लीटर। इसको
मुझे कोई हेल्प कर सकता है ये लीटर को मुझे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए? 1 लीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? Sir, 1000. Very good. 1 liter is 1000 ml, milliliter, and 1 milliliter is 1 cc. Cc is centimeter cube. Therefore, 1 liter is equal to 1000 cc, centimeter cube. So इससे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. So 192.5 times 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या सीसी, या क्यूबिक सेंटीमीटर, कैसे भी लिखना चाहो. 192,500 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम तो आ गया हमारे पास, रेडियस भी है हमारे पास. अब ये शेप क्या है? दिस इज सिलिंड्रिकल शेप. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला निकलेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वेयर एच. वॉल्यूम कितना है? 192,500. ठीक है, पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7 टाइम्स आर स्क्वेयर, दैट इज 7/2 टाइम्स 7/2 टाइम्स एच. ये एच क्या है पता है? दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर. और इस केस में ये हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी पता है? दिस वन. तो तुम बोलोगे कि इसमें क्या नई बात है, ये तो सही है, यही तो होती है हाइट. लेकिन लेट मी टेल यू, you have to visualize in the rate of flow wala questions, you have to visualize the height as the length of water flowing out through the pipe, जिससे हमें स्पीड मिलती है. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? सक्सेसफुली रेट ऑफ फ्लो को स्पीड ऑफ फ्लो में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय फाइंडिंग द लेंथ ऑफ पाइप, that is the length of water flowing out through the pipe in 1 minute. We are finding that, we are finding the length of water. Length of water, तुम कंफ्यूज मत हो. लेंथ ऑफ वाटर मतलब लेंथ ऑफ सिलेंडर विच कंटेन्स वाटर. लेंथ ऑफ द पाइप मतलब उतनी लेंथ जितना, पाइप की उतनी लेंथ जितना पानी 1 मिनट में बाहर चला गया. तो ये लेंथ कितनी है? एच. एच कैसे मिलेगा? ये जो मैंने तुम्हें नीचे इक्वेशन बनाया है यहाँ पे, ये सॉल्व करके मिल जाएगा. चलो इसको ढूंढते हैं पहले. लेट्स फाइंड इट आउट. सो फर्स्ट what we are going to do, we are going to cut this 7, फिर ये 2 से 22 को कट करो, 11 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते. सो 192,500 डिवाइडेड बाय 11 टाइम्स 7. अच्छा, न्यूमरेटर में यू कैन मल्टीप्लाई 2. 11 टाइम्स 7, न्यूमरेटर में 2, इज इक्वल टू द हाइट. ठीक है, अब तुम्हें किसी को तो ये सॉल्व करके मुझे बताना पड़ेगा, बिकॉज आई कैनॉट सिंप्लीफाई दिस. यू नीड टू हेल्प मी. I need h in centimeters. Come on guys, please calculate. Yes, anyone? Come on guys, इतना टाइम मत लो कैलकुलेशन में. थ्री सेवन जीरो 1.29. आई थिंक इट इज इनकरेक्ट, गलत है. किसी को ये आ रहा है?
5000 centimeter. Please confirm. Yes. Okay. So this is the correct answer, 5000 सेंटीमीटर. मतलब 5000 सेंटीमीटर लेंथ जितना पानी 1 मिनट में ये सिलेंडर से बाहर निकल रहा है. देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं स्पीड ऑफ फ्लो. हमने रेट ऑफ फ्लो को किस में कन्वर्ट किया? स्पीड ऑफ फ्लो. स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज 5000 सेंटीमीटर पर मिनट. 5000 सेंटीमीटर पर मिनट. ठीक है, हमें रेट ऑफ फ्लो या स्पीड ऑफ फ्लो ढूंढना है किलोमीटर्स पर आवर में. किलोमीटर्स पर आवर में. नाउ हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर पर मिनट इनटू किलोमीटर पर आवर? बहुत इजी है. देखो यहाँ पे 5000. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सेंटीमीटर्स है. ठीक है, अगर मुझे सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो रिमेंबर किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच. ये होता है सेंटी और ये होता है किलो. ठीक है, सो इफ आई वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम सेंटी टू किलो, 1 2 3 4 5 स्टेप्स मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, छोटे से बड़ा. मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 5000 को. किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1 के आगे 50, मतलब 1 लाख से. 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये हो जाएगा किलोमीटर. ठीक है, अब ये हो गया किलोमीटर. अच्छा, अपॉन. अभी किलोमीटर पर मिनट है. अब मिनट को मुझे आवर्स में करना है कन्वर्ट. ठीक है, मिनट को आवर्स में करना है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा. ठीक है, तो द होल अपॉन 60 कर दूंगा मैं. द होल अपॉन 60, इज इट करेक्ट? जस्ट मोमेंट, लेट मी राइट इट नीटली. 5000 टाइम्स 1 by 1 lakh. ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर टू किलोमीटर पर. मतलब अपॉन दिस पर मिनट, मतलब पर मिनट को पर आवर में करेंगे तो 1 by 60. 60 से हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर मतलब मिनट को डिवाइड कर देंगे. ठीक है, सो ये यहाँ पे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो 5000 टाइम्स 60 अपॉन 1 लाख. ठीक है, तो ये 3 0 यहाँ पे कट गए, ये 1 0 इसके साथ कटेगा. 5 2 ज़ा 10 एंड 2 3 ज़ा 6. तो क्या आ गया? 3 किलोमीटर पर आवर. 3 किलोमीटर पर आवर. 5000 सेंटीमीटर पर मिनट इज 3 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द रेट ऑफ फ्लो in kilometer per hour. Let's check the answer. It is correct, 3 kilometer per hour. Did you all understand this method जिससे मैंने सिखाया? एक भी आंसर नहीं मिल रहा है मुझे, एक भी यस सर नहीं मिल रहा है. मैं बंद कर देता हूँ मीटिंग. दो लोगों ने मुझे मेरे पे मेहरबानी किया है यस सर बोल के, थैंक यू. मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम लोगों को समझ में आया ये? Yes, sir. थैंक यू. और 2 लोग मिल गए मुझे. ठीक है, सो रेट ऑफ फ्लो वाले क्वेश्चन टेक्निकल होंगे, तकलीफ तो देने वाले हैं तुमको, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निक. Okay, let's go to the next question. Water is flowing at a rate of 3 km per hour through a circular pipe of 20 centimeter internal diameter into a circular cistern
of diameter 10 meter and depth 2 meter. So पहले तो मुझे बताओ what is a cistern? What is a cistern? Anyone? What is a cistern? Sir, a hollow pipe. No. Cistern means tank, water tank. वाटर की टंकी होती है ना जो पानी की, सिलिंड्रिकल शेप की है ये टंकी, उसको हम लोग सिस्टर्न बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल सिस्टर्न बोल सकते हैं हम उसको, वी कैन कॉल इट अ सिस्टर्न। ठीक है, और हमारे पास एक पाइप है। पाइप से ये सिस्टर्न में पानी भर रहा है। ठीक है, सो वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। रेट ऑफ फ्लो हमें पता है 3 किलोमीटर पर आवर। ये जो पाइप है उसकी इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये जो सिस्टर्न है उसका डायमीटर 10 मीटर है, मतलब कैपिटल डी 10 मीटर, मतलब कैपिटल आर कितना हो जाएगा 5 मीटर, और इसकी डेप्थ 2 मीटर है, मतलब हाइट एच, कैपिटल एच कितनी है 2 मीटर। ठीक है, ये सिस्टर्न की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे पाइप। इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टर्न बी फिल्ड? हमें ढूंढना है कि सिस्टर्न को कितना टाइम लगेगा फिल होने में। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न निकाल लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न कितना होगा? सिस्टर्न का शेप है सिलिंड्रिकल, सो पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज, इसको हम लोग पाई ही रखते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। आर स्क्वायर इज 5 स्क्वायर और हाइट होगी 2, सो 25 टू ज़ा 50, 50 पाई, 50 पाई वॉट मीटर क्यूब, 50 पाई मीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न। मैंने पाई इसलिए छोड़ दिया बिकॉज आगे जाके पाई कटने वाला है। हमें ढूंढना क्या है पता है? हमें ढूंढना है हाउ मच टाइम विल द सिस्टर्न बी फिल्ड, कितने टाइम में सिस्टर्न भरेगा। सो सिस्टर्न विल बी फिल्ड and time you will get in minute or hours or seconds. ठीक है, so time you will find in minutes or hours or second, we don't know। rate of flow हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है। ये जो किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, लेट्स कन्वर्ट दैट फर्स्ट। देखो मैं हाउ द क्वेश्चन इज गोइंग अहेड, हाउ इट प्रोसीड्स, थोड़ा उस पर ध्यान दो। सबसे पहले आई एम गोइंग टू वर्क आउट द रेट ऑफ फ्लो। सो रेट ऑफ फ्लो is how much? 3 kilometer per hour. Now we have learned this in class 9th, how to convert from kilometer per hour to meter per second, right? So 3 into
5/18. डू यू एग्री विथ मी? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना? Yes, sir. So 3 6 are 18. So 5/6 meters per second. तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एवरी सेकेंड 5/6 मीटर लेंथ ऑफ वाटर, प्लीज नोट करो हाँ ये मेरे साथ, एवरी सेकेंड 5/6 मीटर लेंथ ऑफ वाटर flows into the cylinder. एवरी सेकेंड 5/6 मीटर लेंथ, रेट ऑफ फ्लो अगर 5/6 मीटर पर सेकेंड है, इसका मीनिंग यही है कि एवरी सेकेंड 5/6 मीटर लेंथ ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द सिलेंडर. एंड व्हाट इज दिस 5/6 मीटर लेंथ ऑफ वाटर? इसका मीनिंग क्या है? इसको हम लोग वॉल्यूम में ट्रांसफॉर्म कर देंगे. लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ वॉल्यूम. हाउ वी कन्वर्ट इट इनटू वॉल्यूम? सो वॉल्यूम क्या है? पाइप का शेप क्या है? सिलिंड्रिकल. तो वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच. पाई को मैं पाई ही रखता हूं. आर स्क्वायर रेडियस है 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर. और हाइट कितनी है? 5/6 है ना. एवरी सेकेंड 5/6 मीटर लेंथ, लेंथ इज द हाइट ऑफ सिलेंडर. ठीक है. सो ये हो जाएगा पाई टाइम्स 100 टाइम्स 5/6. 2 3s are 250s are 250 pi by 3, 250 pi by 3, 250 pi by 3. और यहाँ पे आ जाएगा हे दिस इज सेंटीमीटर. गड़बड़ की हमने एक, मीटर में चाहिए अपने को. आई टेल यू व्हाट मिस्टेक वी हैव डन. सो रिमेंबर, मैंने तुम्हें बोला कि एवरी सेकेंड 5/6 मीटर लेंथ ऑफ वाटर फ्लोज. मतलब ऑलरेडी हम हाइट मीटर में ले रहे हैं और यहाँ पे रेडियस सेंटीमीटर में है. ये सेंटीमीटर को हमें मीटर में लाना पड़ेगा. सेंटीमीटर टू मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड बाय 100. तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर. ठीक है. तो 22/7 इंटू आर स्क्वेयर, दैट इज 0.1 द होल स्क्वेयर times h, that is the height or the length, whatever, that is 5/6. all right. ठीक है. So volume of water flowing into the cylinder, into the cistern, actually cistern, volume of water flowing into the cistern is equal to 22/7 into 0.01 into 5/6. ठीक है. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.22 times 5 by 7 6 are 42. Yeah, we could have cut that and simplified, but ठीक है, बाद में भी कर सकते हो. 22 5 are 110, इसको 1.1 भी लिख सकते हो. You can do it later. ठीक है. सो ये क्या है? ये मीटर क्यूब. दिस मच वॉल्यूम ऑफ वाटर flows into the cistern every second. एवरी सेकेंड. और पूरे सिस्टर्न का वॉल्यूम कितना है? 50 पाई. तो पूरा सिस्टर्न भरने में कितना टाइम लगेगा ये हम निकाल सकते हैं. वी नो हाउ मच एवरी सेकेंड, हाउ मच वाटर इज फॉलिंग इनटू द सिस्टर्न एवरी सेकेंड एंड व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम. ठीक है. तो इससे हम लोग एक रिलेशन बना सकते हैं. टाइम रिक्वायर्ड टू फिल the cistern is equal to, time required to fill the cistern is equal to volume of cistern upon volume of water flowing in the cistern per
सेकेंड, पर सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न क्या है? 50 पाई। हे, क्या मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू डाली थी? नहीं डालनी थी। देखो ये मैंने फिर से गलती की है। इसको पाई को पाई रखते हैं ना, यहाँ पे पाई कट जाएगा। आई टोल्ड यू अर्लियर ओनली। सो दिस इज पाई टाइम्स 0.05 by 6, है ना। सो वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न क्या है? 50 पाई ना, या 100 पाई? 50 पाई, यस। Volume of cistern is 50 pi upon volume of water flowing into the cistern per second is 0.05 pi by 6. तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, so this will become 50. अच्छा, ये पाई पाई भी कट जाएगा। 50 divided by 0.05 into 6, so this will be 50 times 100 by 5 into 6. 5 tens are 50, or 10 into 100 is 1000. 1000 times 6 is 6000. 6000। अच्छा, ये टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड्स। वाई सेकेंड्स? आई टेल यू। यहाँ पे वी wrote every second इतना length of water flows into the cistern. So this is the volume of water flowing into the cistern per second. ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो टाइम आया है हमें सेकेंड्स में मिला है, बट अभी इसको सेकेंड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स एंड मिनट्स में. सो व्हाट डू वी डू? We divide it by 3600 because 1 hour has got 3600 seconds. So I'm converting seconds into hours. So 6000 by 3600. पहले 0 0 cut 6 10s are 6 6s are 2 5s are 2 3s are 1 2 by 3 hours. इसको भी हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर्स एंड मिनट्स. तो सो 1 आवर प्लस 2 by 3 आवर्स. 2 by 3 मतलब 2 by 3 टाइम्स 60 कर दो. 2 by 3 फ्रैक्शन में, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 कर दो. सो 3 20s are 60. सो 1 आवर 40 मिनट्स. 1 आवर 40 मिनट्स इसका आंसर होना चाहिए. ठीक है, लेट्स चेक. 1 hour 40 minutes. ठीक है, 1 hour 40 minutes is the correct answer. So फिर से पूछ रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? कोई पार्ट में डाउट है? कोई क्वेश्चन है? पूछना है कुछ तुम्हें? No, sir. No, sir. क्या तुमने सब कुछ नोट किया? Yes, sir. मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको यूट्यूब पे भी डालूंगा. अगर सॉल्व करते टाइम, एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम रेट ऑफ फ्लो वाले प्रॉब्लम्स तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं, यू कैन अगेन वॉच द वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. फिर भी नहीं आता है तो हम लोग फिजिकल क्लास में इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, सो डोंट वरी, बट यू शुड नो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं. एंड फॉर दैट आई एम रिकॉर्डिंग, तो तुम दूसरी बार भी देख सकते हो. ठीक है, डजंट मैटर. अगेन रेट ऑफ फ्लो. Water is flowing at the rate of 7 meters per second through a circular pipe whose internal diameter is 2 centimeter into a cylindrical tank whose base radius is 40 centimeter. Determine the increase in the water level in half an hour. तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है. एक सिलिंड्रिकल पाइप है, सर्कुलर पाइप, सिलिंड्रिकल पाइप, उससे एक सिलिंड्रिकल टैंक या सिस्टर्न के अंदर पानी गिर रहा है. सिलिंड्रिकल जो सर्कुलर जो पाइप है या सिलिंड्रिकल पाइप है, उसका रेट ऑफ फ्लो दिया है 7 मीटर्स पर सेकेंड.
और इंटरनल डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, और सिलिंड्रिकल टैंक का सिर्फ बेस का रेडियस दिया है। हमें सिर्फ इंक्रीज इन द वाटर लेवल इन हाफ एन आवर ढूंढना है। So we don't know whether water was already present in the cylindrical tank or not, but that doesn't matter, क्योंकि हाफ एन आवर में कितना वाटर भरता है हमें सिर्फ उतना ही ढूंढना है। ठीक है, सो बेसिकली हाफ एन आवर में ये सिलिंड्रिकल पाइप से सिलिंड्रिकल टैंक में कितना वाटर ट्रांसफर होता है, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो लेट अस स्टार्ट विथ, वी ऑलवेज स्टार्ट विथ रेट ऑफ फ्लो, वी ऑलवेज बिगिन आवर क्वेश्चन ऑफ दीज टाइप विथ रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो से ही शुरू करते हैं। सो रेट ऑफ फ्लो इज 7 meters per second, 7 meters per second। ठीक है, मतलब in 1 second 7 meter length of water flows into the tank, cylindrical tank। 1 सेकेंड में 7 मीटर लेंथ जितना पानी टैंक में जाता है। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही कर रहा हूं मैं। अब तो ये आदत हो जानी चाहिए, एक पैटर्न तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि हर एक रेट ऑफ फ्लो में तो हम लोग ऑलवेज जो स्पीड है उससे हाइट या लेंथ निकाल लेते हैं सिलेंडर की, जिससे हम आगे क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो ये जो 7 मीटर है ना, इसको मैं 700 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। 7 मीटर इज 700 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो हाइट या फिर लेंथ है उसको मैं ले लेता हूँ 700 सेंटीमीटर। ये जो सर्कुलर पाइप है उसका इंटरनल डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर, और इससे मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing, volume of water flowing into the tank, volume of water flowing into the tank is equal to pi r square h. Pi is let's find the volume because we need to, otherwise it will be difficult. यहाँ पे पर सेकेंड लिखता हूँ मैं, pi that is 22/7 into r square, radius is 1 square, into the height is 700, 700s 22 times 1 times 100 is 2200, 2200 centimeter square, 2200 centimeter square of water, sorry centimeter cube, I'm sorry for that, centimeter cube of water flows into the cylindrical tank per second, 2200 centimeter cube per second। ये है रेट ऑफ, सॉरी हाँ यस, रेट ऑफ फ्लो, यू कैन से वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो मिल गया हमें, पर सेकेंड इतना पानी गिर रहा है। हमें इंक्रीज इन द वाटर लेवल ढूंढना है इन हाफ एन आवर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर accumulated, volume of water accumulated into the cylindrical tank in half an hour. Half an hour is 30 minutes. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर accumulated into cylindrical tank in 30 minutes is equal to, देखो 2200 ये है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड,
1 सेकंड में इतना पानी गिर रहा है, ठीक है। मुझे 30 मिनट्स में कितना पानी चाहिए वो ढूंढना है। तो मुझे बताओ 30 मिनट्स मतलब कितनी सेकंड्स होती है? हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 30 मिनट्स? 1800. 1800, you are correct. 2200 times 1800 and this will be in centimeter cube. इतना पानी गिर जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है सिलिंड्रिकल टैंक में 30 मिनट्स में। हमें क्या ढूंढना है? इंक्रीज इन द वाटर लेवल, ठीक है। अब सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम हम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक is also equal to pi into capital R square into capital H। ये टैंक का वॉल्यूम है। ये जो वॉल्यूम है इसको मैं इक्वेट कर दूंगा 2200 टाइम्स 1800 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही तो पानी अंदर गिरा है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 22/7 टाइम्स आर स्क्वेयर, कैपिटल आर। ये जो आर है दैट इज द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक। बेस रेडियस 40 है ना, तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर लेना पड़ेगा इनटू एच, कैपिटल एच। ठीक है। सो वी हैव 2200 times 1800 times 7/22 the whole upon 40 times 40 is equal to h। ठीक है। सो ये 0 0 दोनों 0 कट गए, यहाँ पे दोनों 0 कट गए, 22 22 दोनों कट गए, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा। हाइट कितनी हो गई? 63/8। 63/8 and this will be in centimeters, I think. I hope this is correct because this is coming out to be in fraction for the first time। हम लोग को ऐसा आंसर मिल रहा है, बट यहाँ तक हमने जो भी किया है सब कुछ सही था। So I think I'm not wrong in here। 63/8 कोई मुझे डेसिमल्स में आंसर बता सकता है इसका? Anyone in decimals? This is the height increase in height of water level in the cylinder. Can anyone tell me? Sir, 7.875. Okay, I think correct है। If we have not done any mistake in calculation or understanding the question, then the answer should be correct. The water level will increase by 7.875 centimeter। Okay, there is one mistake। 787.5 आ रहा है इनका, तो हमने क्या गड़बड़ किया? 40 सेंटीमीटर 7 मीटर्स पर सेकेंड, इसको तो हमने 700 सेंटीमीटर पहले ही ले लिया था। रेडियस 2 सेंटीमीटर को हमने, सॉरी डायमीटर 2 सेंटीमीटर को 1 भी ले लिया था। वॉल्यूम भी हमने सही ढूंढा था 2200 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो इंटू 1800 इंटू 7/22 अपॉन 40 टाइम्स 40। सब कुछ सही है, 2 0 कट किए थे। Oh, I think we missed 2 zeros here। You see, ये 2 0 है, हमने मिस किया था, तो ये 2 0 आएंगे यहाँ पे। यस, सो 787.5।
centimeter. Nah, silly mistake. 787.5 centimeter. Did you all understand this? This one? क्या सबको समझ में आया ये? Yes, sir. ओके, 2 लोगों को आया है, बहुत खुश हूं मैं. ये सब लेंदी क्वेश्चंस है. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन in front of you. The rainwater from a roof of 22 meter times 20 meter drains into a cylindrical vessel having a diameter of base 2 meter and height 3.5 meter. The vessel is just full. Find the rainfall in centimeter. Oh, lovely question यार, lovely question. I don't know कितने लोगों को समझ में आया, but let me tell you क्या सिनेरियो क्या है. सो ये एक छोटा सा घर है, ठीक है. यहाँ पे रूफ है इसका. ये रूफ पे ऐसे टेरेस होता है ना, ये टेरेस है. तो इधर बारिश गिरती है, बारिश का पानी इस पे टेरेस पे जमा होता है. यहाँ पे एक पाइप है, सपोज यहाँ पे एक पाइप है. ये पाइप के थ्रू ये पानी नीचे गिरता है और यहाँ पे ऐसा एक सिलिंड्रिकल वेसल रखा है जो फुल हो गया है पानी से, जिसमें पानी पूरा भर गया है, बारिश का पानी. ठीक है, बारिश का पानी पूरा यहाँ पे है, पूरा भर चुका है ये. और यहाँ से पानी पूरा इकट्ठा होके इधर से नीचे गिर रहा है और ये वेसल भी पूरा भर गया है. मतलब जो बारिश का पानी है उससे ये वेसल भरा है. ठीक है, ये पूरा पानी यहाँ पे नहीं है, यहाँ से इधर ऑलरेडी गिर चुका है, ये अभी खाली हो गया है यहाँ से. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज के पानी अभी भी है क्या ऊपर और गिर रहा है क्या, नहीं गिर रहा है. ये पूरा वेसल भर जाए उतना पानी है. ठीक है, अब रूफ का तुम्हें लेंथ और ब्रेथ दिया है, 22 मीटर बाय 20 मीटर लेंथ और ब्रेथ है. और ये सिलेंडर का बेस रेडियस या डायमीटर और हाइट दिया है. हमें रेनफॉल ढूंढना है सेंटीमीटर में. व्हाट डू यू मीन बाय दैट, रेनफॉल इन सेंटीमीटर? क्या क्या मीनिंग है इसका, फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर का? So the height of the roof. हाइट ऑफ द वाटर एक्यूमुलेटेड इन द रूफ. सही है ना? नॉट हाइट ऑफ द रूफ, हाइट ऑफ द वाटर एक्यूमुलेटेड इन द रूफ. तो इसको कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट में? वॉल्यूम ऑफ वाटर accumulated on the roof is equal to volume of cylindrical vessel. Right? Volume of water accumulated on the roof is equal to volume of cylindrical vessel. तो volume of water accumulated on the roof क्या है? रूफ का जो शेप है, इट इज, कोई बता सकता है रूफ का शेप क्या है? Cuboidal. एग्जैक्टली, क्यूबॉइडल. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. और सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता ही है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. लेंथ है हमारी 22, ब्रेथ है 20 और हाइट हमें नहीं पता है, सब कुछ मीटर्स में लिया है मैंने. पाई इज 22/7. आर स्क्वायर, देखो डायमीटर ऑफ बेस 2 मीटर है तो रेडियस 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर. और हाइट है 3.5. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है. 7 0.5 जा. ठीक है, 22 तो दोनों साइड से कट जाएगा सीधा सीधा, 20 वो साइड चला जाएगा. सो हाइट इज इक्वल टू 0.5/20, दैट इज 5/200.
0.5 by 20 or 5 by 200. That is 5 आई थिंक इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं डायरेक्टली 5 सीधा 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उससे क्या हो जाएगा 2.5 बाय 100 आएगा दैट इज, और ये आएगा तुम्हारा मीटर्स में 2.5 बाय 100 आएगा मीटर में। इसको सेंटीमीटर में करना है तो इंटू 100 करो तो तुम्हें मिलेगी हाइट, मतलब फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर, सीधा सेंटीमीटर में आएगा रेनफॉल 2.5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ 2.5 सेंटीमीटर। So if you form an equation, it can be solved easily. Let's check the answer first. This is the answer, okay? बस इतना ही है क्वेश्चन, छोटा सा है। 2.5 सेंटीमीटर is correct. समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay. लिखा सबने? Yes, sir. Water in a canal 30 decimeter wide, 12 decimeter deep is flowing with a velocity of 10 kilometer per hour. तो एक कैनाल है, I hope all of you know how a canal looks like. ठीक है, ये कैनाल है सपोज, और वाटर यहां से फ्लो हो रहा है। कैनाल का जो भी डिटेल्स है वो लिख लेते हैं हम लोग। कैनाल इज 30 डेसीमीटर वाइड। कैनाल की विड्थ बताइए। विड्थ इज द ब्रेथ 30 डेसीमीटर। इसको तुम मीटर में भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। हम लोग मीटर में लिखेंगे इसको। सो यू शुड नो किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। दिस इज डेसीमीटर ओवर हियर, दिस इज डेका। डेसी टू मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो छोटे से बड़े में जाना है, 1 स्टेप, मतलब 10 से डिवाइड करना है। 30 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 3 मीटर मिलेगा मुझे। वाटर इन अ कैनाल 30 डेसीमीटर वाइड, 3 मीटर वाइड, 12 डेसीमीटर डीप। इसकी जो हाइट है कैनाल की वो है 12 डेसीमीटर। सो एच हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, डायरेक्टली लिख रहा हूं 1.2 मीटर। इट इज फ्लोइंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। रेट ऑफ फ्लो दिया है कैनाल में, जो पानी का रेट ऑफ फ्लो है वो कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is required for irrigation? अब ये पानी गिर कहाँ रहा है? This water is falling into a rectangular field. That's what we have to assume. ठीक है, रेक्टेंगल और कैसे भी हो सकता है ये, बेसिकली एज्यूम करेंगे रेक्टेंगुलर है ताकि इजी हो समझना। अब यहाँ पे ये पूरे एरिया को सपोज ये वाटर इरिगेट कर रहा है, और इरिगेट तो कर ही रहा है। कैसे कर रहा है कि पूरे एरिया में वाटर जो हाइट पे, जिस हाइट तक वाटर भर जाएगा, वो जो हाइट है वो कितनी है स्टैंडिंग वाटर की 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हाइट है ये स्टैंडिंग वाटर की। जो भी पानी निकल रहा है वो पूरे एरिया को इरिगेट करके 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर बना रहा है इरिगेशन के लिए। सो कितना एरिया वो इरिगेट करेगा, और ये सब होना चाहिए 30 मिनट्स में। ठीक है, सो पहले जो रेट ऑफ फ्लो है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। 10 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग।
हाँ, मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर आर भी होगा तो चलेगा वैसे, या मीटर पर मिनट। ठीक है, मीटर पर सेकंड ही सही है। बाद में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक लेट्स कीप इट मीटर पर आवर। सो 10 into 1000. Why 1000? Because kilometer, 1 kilometer is 1000 meter. ठीक है, मीटर पर आवर, m per h, that is 10,000 मीटर पर आवर। एक घंटे में 10,000 मीटर लेंथ ऑफ वाटर कैनाल से फ्लो होके गिर रहा है फील्ड में। अब यहाँ पे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस तुमने देखे और ये क्वेश्चन में एक फर्क है। पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें जो सिलिंड्रिकल पाइप था, जो जो भी पाइप था वो सिलिंड्रिकल था। यहाँ पे कैनाल क्यूबॉइडल है। सो दैट्स अ मेजर डिफरेंस, मेजर डिफरेंस। सो पहले तुम सिलेंडर का फॉर्मूला लेते थे वॉल्यूम का, अब तुम्हें क्यूबॉइड का लेना पड़ेगा। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि 10,000 मीटर ऑफ वाटर flows out of canal in 1 hour. Therefore, volume of water flowing out of canal in 1 hour is equal to L into B into H. Why L into B into H? Why not pi r square H? Because canal is cuboidal. ठीक है, L क्या है? लेंथ। लेंथ कितनी है? 10,000 मीटर। ब्रेथ कितनी है कैनाल की? 3। हाइट कितनी है? 1.2। सो ये हो जाएगा 36 times 1000, that is 36,000 meter cube, 36,000 meter cube। ठीक है, 36,000 meter cube of water is flowing, 36,000 meter cube volume of water is flowing out of the canal into the field in 1 hour। बट हमें 1 आवर का टाइम नहीं दिया है, हमें टाइम कितना दिया है? 30 मिनट्स का, मतलब 1 आवर का हाफ। सो हम लोग लिख सकते हैं ना, देयरफॉर इन 30 मिनट्स इसका हाफ वाटर ही फ्लो होगा। इन 30 मिनट्स 18,000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर विल irrigate the field. In 30 minutes, 18,000 meter cube of water will irrigate the field. Right? Cool. So 30 minutes. अब देखो, अब हम फील्ड पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड, जो हमें पता नहीं है क्या है और जिस हमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। एक्चुअली हमें ढूंढना है एरिया, एरिया ऑफ फील्ड मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड कितना होगा? 18,000 मीटर क्यूब। एरिया ऑफ फील्ड कितना होगा? नहीं पता। और मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड इन द फील्ड कितना है? 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड कितना है? 8 सेंटीमीटर। सो 8 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में लिखना पड़ेगा, दैट इज 8 अपॉन, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, सो एरिया ऑफ फील्ड मिल जाएगा मुझे
18,000 multiplied by 100 divided by 8 is equal to area of field. कोई ये कैलकुलेट करके फटाफट बता सकता है मुझे? 4 2s are 4 25s are 2 9,000s are राइट. कितना आएगा एरिया ऑफ फील्ड? मीटर स्क्वायर में आएगा. 25 9s are 225 000 मीटर स्क्वायर. इसको हम लोग हेक्टर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि फील्ड के एरिया को जनरली हेक्टर्स में लिखा जाता है. 2,25,000 मीटर स्क्वायर. देखो, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच. ये जो है ना, ये हेक्टोमीटर है और ये तुम्हारा मीटर. अगर तुम्हें मीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें करना पड़ेगा डिवाइड बाय 100, है ना. 2 स्टेप है. लेकिन अगर तुम्हें मीटर स्क्वायर से हेक्टोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 स्क्वायर मतलब डिवाइड बाय 10,000 करना पड़ेगा. तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 10,000 करूं तो ये 3 0 कट. 22.5 हेक्टोमीटर स्क्वायर या फिर हेक्टर. 22.5 हेक्टर is the area of the field which the water will irrigate. Let's see क्या है आंसर. पहले चेक करते हैं. यूनिट doesn't matter. 2,25,000 मीटर स्क्वायर. परफेक्ट. तो और आज सारे आंसर करेक्ट आ रहे हैं मेरे. समझ में आया सबको? Yes, sir. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बच्चे, एक ही लड़की बोल रही है सर. बाकी लोगों को लगता है बोर हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. 22 क्वेश्चन है टोटल. हम लोग 18th पे पहुंचे. Water is flowing at the rate of 15 km per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a rectangular tank which is 50 meter long and 44 meter wide. Find the time in which the level of water in the tank will rise by 21 centimeter. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हमने पहले ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किया था, उसमें हमें टाइम दिया था और हाइट पूछा था. फाइंड द हाइट बाय विच द वाटर लेवल विल इंक्रीज. यहाँ पे हमें वाटर लेवल विल राइज बाय 21 सेंटीमीटर दिया और टाइम पूछा है. ठीक है. पहले रेट ऑफ फ्लो से शुरू करते हैं हम लोग. रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर. सारे जो तुम्हारे मेजरमेंट्स है सेंटीमीटर और मीटर में, तो इसको डायरेक्टली मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा. 15 times 5 by 18. 3 5s are 3 6s are. So 25 by 6 meters per second. एक सेकंड में, in 1 second. 25 by 6 meters of water will flow out of the pipe. ठीक है. 25 by 6 meter of water will flow out of the pipe.
therefore volume of water flowing out of pipe in 1 second is equal to pi r square h. पाई को पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर रेडियस, पाइप की रेडियस कितनी है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, रेडियस हो जाएगी 7, सो 7 स्क्वायर टाइम्स एच हाइट, हाइट कितनी है 25/6। ठीक है, इतना पानी पाइप से 1 सेकंड में, इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पानी, राइट, सेंटीमीटर क्यूब है मीटर क्यूब, ये तो मीटर में था। अच्छा देखो ये मीटर पर सेकंड है, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज 2500/6 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने क्या किया, सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2500 आ जाएगा, नहीं तो ये गलती हो जाती। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द पाइप इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में इतना पानी बाहर गिर जाएगा। अच्छा, अब हमें वो रेक्टेंगुलर टैंक को भरना है 21 सेंटीमीटर से, चलो उसकी बात करते हैं। वॉल्यूम of water to be filled volume of water to be filled in rectangular tank is equal to LBH। ठीक है, रेक्टेंगुलर टैंक की लेंथ 50 मीटर है, विड्थ 44 मीटर है। 50 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, इंटू 100 टाइम्स 44 मीटर इंटू 100 टाइम्स हाइट बाय विच वी हैव टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम इज 21, सो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। 50 times 100 times 44 times 100 times 21, this is the volume of water to be filled in the rectangular tank। अब हमारे पास 1 सेकेंड में इतना वॉल्यूम पानी से बाहर गिर रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, और हमारे पास इतना वॉल्यूम फिल करने को है सेंटीमीटर क्यूब में टैंक के अंदर। ठीक है, सो टाइम निकाल सकते हैं हम लोग, therefore time required will be total volume to be filled, which is 50/100 times 44/100, इसमें तो पाई आया ही नहीं, पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी हमको, टाइम्स 21, the whole upon pi into 7 square into 2500/6, pi is 22/7 times 7 into 7 times 2500/6. 7 and 6 will go up. Hey, first this 7 will cut. 6 will go up. Can I write it as 5000? Convenient. Times 4400 times 21 times 6 upon 22 times 7 times 2500, right? तो 2500 2s are 5000, 22 2s are 44, यहाँ पे 2 0 भी आएंगे, and 7 3s are 21, right? So this is 400 times 18, and this is 7200. 7200 what? Seconds. Q seconds, because we have found out the water volume of water flowing out through the pipe in 1 second, तो आंसर हमें सेकेंड्स में आएगा, सही है। अच्छा, 7200 seconds कितना आवर्स होता है? इट इज एग्जैक्टली 2 hours, बिकॉज 1 hour has 3600 seconds,
So time required to fill the or increase the level of water in tank by 21 centimeters is 2 hours exactly. ठीक है, तो आंसर ये भी करेक्ट आया. चलो अभी देखते हैं आगे के क्वेश्चन कितने डिफिकल्ट या कितने इजी है. Okay, so this is also easy. Similar type of question. यहाँ पे internal diameter of the pipe through which the water is flowing out ढूंढना है. तो ये मैं skip कर सकता हूँ easily. I think I'm going to skip all of them. A farmer connects a pipe of internal diameter of 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank. अच्छा, कैनाल से टैंक में एक पाइप कनेक्ट किया है और सिलिंड्रिकल टैंक के डायमेंशंस दिए हैं, वाटर का रेट ऑफ फ्लो दिया है पाइप से, हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड. हाउ मच टाइम में अगर ढूंढना है तो वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू द पाइप इनटू द टैंक पर सेकेंड. तो तुम्हें सेकेंड्स में टाइम आएगा. एंड ये भी ऐसा किया हुआ है हमने क्वेश्चन, तो आई कैन स्किप दैट. ओके, दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. मैंने 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं तुम्हारे लिए. क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये तुम्हें मैं भेजूंगा पूरा लेसन प्लान, सो यू कैन ट्राई देम. ठीक है, मैं ये वाला ट्राई करना चाहता हूँ. आई थॉट दैट सारे क्वेश्चन सिमिलर है, मैं सारे स्किप कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं है. ये वाला थोड़ा अलग है, तो मैंने सोचा कि आई विल ट्राई फॉर यू सो वी कैन फिनिश दिस पार्ट इजीली, है ना. A vessel full of water is in the form of inverted cone of height 8 centimeter. ये full of water है. इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर. And radius of top which is open is 5 centimeter. Okay. 100 spherical lead balls are dropped into the vessel. इसमें बहुत सारे 100 मतलब बहुत सारे मतलब एग्जैक्टली 100 स्फेरिकल बॉल्स इसके अंदर डाल दिए. स्फेरिकल मेटल बॉल्स, मेटालिक है लेड बॉल्स, या सो मेटालिक स्फेरिकल लेड बॉल्स को अंदर डालने से क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा. पहले से ही पानी फुल था इसमें, अगर स्फेरिकल बॉल भी डाले अंदर तो पानी बाहर आ जाएगा. एंड 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द वेसल. इसकी वजह से जो पानी बाहर निकल रहा है, दैट इज 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन. 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन जितना पानी ओवरफ्लो होके बाहर आ गया. फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल. इसमें तुम्हें एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी विच यू हैड यूज्ड इन क्लास 9th. क्लास 9th में तुमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है. ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की टेक्निक यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी. यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट submerged is equal to volume of water displaced. Volume of object submerged is equal to volume of water displaced. याद है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लास 9th में पढ़ा था हमने. Yes, sir. या सो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज. अभी किसको सबमर्ज किया है इसमें,
स्फेरिकल लेड बॉल्स को। कितने लेड बॉल्स है? 100, तो सबका वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बॉल। एक स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है? 1/4 द वॉल्यूम ऑफ द कोन of water overflows. So 1/4 times the volume of cone. Volume of cone कितना है? 1/3 into pi, ठीक है, into r square h। ये जो कोन है उसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। सो 5 स्क्वायर इंटू उसकी हाइट कितनी है? 8, ठीक है। 4 2 जा 3 3 भी कट हो जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, so we have 5 square into 2, 25 2s are 50 divided by 400, is it right? यहाँ पे r क्यूब है, राइट? यहाँ पे सब कुछ कट हो गया। 5 स्क्वायर 25 था, टाइम्स 2 था, 25 टाइम्स 2 50 हो गया। यहाँ पे 400, ओके। सो ये हो गया 1/8। सो r क्यूब 1/8 है, तो r कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 क्या है? सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ ईच spherical lead ball is 0.5 centimeter. The radius of each spherical ball is 0.5 centimeter. तो बहुत सिंप्लिसिटी से ये आंसर आ गया, कोई भी ज़्यादा यू कैन से फैंसी कैलकुलेशन कुछ नहीं, क्योंकि हमने पहले ही वो इक्वेशन बना दिया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला। तो ये भी कहीं कहीं काम आता है। एक्चुअली 9th में भी सरफेस एरिया वॉल्यूम में ऐसे क्वेश्चंस आए थे, इफ यू हैड नोटिस्ड, ठीक है। चलो, सो लेट्स चेक इट आउट। 1/2 0.5, perfect. This is the final question, and then we have the exercise. A housing society, देखो देखते हैं कैसा है। अगर ये सिमिलर है तो स्किप कर सकते हैं। A housing society used to collect rain water from the roof of the building 22 meter by 20 meter to a cylindrical vessel। अच्छा, ये तो किया हुआ है क्वेश्चन। Having a diameter of base 2 meter and height 3.5 meter, and the pump then pump this water into the main water tank so that all the members can use it. Rainwater harvesting. On a particular day, the rainwater collected from the roof just filled the cylindrical vessel, जो हमने पहले ही किया था. Then find the rainfall in centimeters. Exactly what we did. I think इसके dimensions भी वही है, सेम है शायद। हमें क्या आंसर आया था इसका? 2.5 सेंटीमीटर, यही है। सो ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले सॉल्व किया था। आई थिंक ये क्या बोलते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आता है, राइट? तो दिस वाज द लार्जेस्ट पार्ट इन द चैप्टर जो हमने आज कंप्लीट कर दिया है, फर्स्ट पार्ट। और लास्ट आई थिंक, वेट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।